Good afternoon, everybody. My name is Madan Kumar. I'm working with Provin Techno Private Limited. First of all, I like to thank BMPA and Mr. Pandala Selvam to give this opportunity. Uh, Normally, our company is called Provin Techno Private Limited. We are the authorized dealer for Mitsubishi and Ryobi machines in India. And Mitsubishi Sheetfed Heatset Press, we are the dealers. We are dealing with India. We are giving service and sales supports in Indian market. Apart from that, we are giving Rototech machines. It's a flexo come offset machines. Then we are giving a sheeter, Markiv watt united sheeters. All these machines are being service and sales support has been taken care of by Provin. Our office is based in Delhi, and Mr. Vinay Kaushal and Mr. N. Pradeep is the director of our company. Let's go into this subject. I want to make this subject as more interactive and interesting one. Before that, I want to tell one thing because मेरा हिंदी थोड़ा ग्रामर मिस्टेक ज़्यादा होगा, तो काइंडली एक्सेप्ट दिस. अभी बीच बीच में हिंदी में बता दूंगा. Normally, lithographic printing. What is lithographic printing? This is just basic. If you take any machine, कोई भी machine आप ले लीजिए, आपका पास प्लेट सिलेंडर होगा, ब्लैंकेट सिलेंडर, इम्प्रेशन सिलेंडर होगा. उसमें मिनिमम 20 to 25 रोलर्स होगा. Normally, you have a name for each and every rollers. Like, see, where you are going to put ink here, and this roller is called ink fountain rollers. You will normally put the ink here. Then this ink is been transferred to the plate cylinder by this n number of rollers. These rollers take the ink from here and it is keep on transferring the ink towards the plate cylinder. This roller is called ink ductor roller, and you have 4 oscillation rollers. It will oscillate here and there, and these rollers are called ink transfer rollers. There are 4 ink form rollers होगा, एक और 2 water form rollers होगा. It's based on the machine designs. It will change. The role of this ink roller, it will take the ink from the ink fountain rollers and it will supply the ink to the plate cylinder. The role of dampening rollers, it will supply water to the plate cylinders. उसके बाद वो प्लेट सिलेंडर से आपका इंक ब्लैंकेट सिलेंडर आ जाता है. ब्लैंकेट सिलेंडर के बाद आपका इम्प्रेशन सिलेंडर में पेपर बीच में पास होगा, प्रिंटिंग उधर होगा. नॉर्मली इट इज़ कॉल्ड indirect printing process because from plate cylinder image has been transferred to blanket cylinder. From blanket cylinder it has transferred to the paper, and it is work with the principle, as everyone know, offset work with the principle of oil and water will not mix each other. So here basically water is a dampening solution and oil is the ink. So oil and water will not mix with each other. Standardization of press. So we are here to know about the standardization of press. I like to clarify this before going to the slides. I want to ask some general questions. See, if I am a printer, I am having 3 machines. Machine 1, say it may be Mitsubishi. The age of the machine is 10 years. Machine 2, say it may be Ryobi. The age of the machine is 2 years. And I am having a machine 3. Say it may be Heidelberg. The age of the machine is 5 years. Since I have 3 machines, but my customer is giving a job. He is giving a job to me. If I print the job, I'm going to put a plate. If I'm going to print the job at Mitsubishi, what will be the result? If I print with Ryobi, what will be the result? And if I print with Heidelberg, what will be the result? Will you please tell me whether सारा मशीन में मैं प्रिंट किया, एक तो पुराना मशीन है, एक तो नया मशीन है, एक तो अभी आया था, रिजल्ट विल बी सेम? अभी स्टैंडर्डाइज कुछ नहीं किया मैंने.
रिजल्ट विल बी सर, हाँ सही आएगा। अभी मेरा क्लाइंट तो एक ही है, एक जॉब दे रहा है। सोच लीजिए अगर नया मशीन में छाप रहा है ये महीना, फिर सेकेंड मंथ इज कमिंग फॉर अ सेम जॉब, मेरा नया मशीन कुछ मेंटेनेंस में है, खराब है, फिर मैं दूसरा मशीन में डालना है, लेकिन मेरा रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। फिर आई एम लॉसिंग ए क्लाइंट, आई एम लूजिंग माई कस्टमर। स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल। मेरा मशीन पुराना है, नया है, आज आया, 10 साल के पहले आया, मैं तो ये स्टैंडर्डाइज करके ये सारा रिजल्ट एक ही प्रोड्यूस होना चाहिए। वो क्या क्या चीज़ में कर रहा है उसका नाम स्टैंडर्डाइजेशन है। बस इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये डाला था। अभी सोच लीजिए मेरा कस्टमर है, मेरा कस्टमर जॉब दे रहा है, आई एम गोइंग टू गिव दैट जॉब इन प्री प्रेस। प्री प्रेस से मेरे को प्लेट आ रहा है, 4 प्लेट्स, 4 प्लेट्स, 4 प्लेट्स। अगर ये प्लेट में ये चापा था, रिजल्ट अलग है, ये प्लेट में चापा था, रिजल्ट अलग है, ये प्लेट में चापा था, रिजल्ट अलग है। मेरे को रिजल्ट एक ही होना चाहिए, रिजल्ट शुड बी 1। फॉर दैट आई नीड टू स्टैंडर्डाइज द machine according to the ISO standard. That ISO standard is, as Mr. Pandala Selvam told, ISO standard 12647-2. That is for sheet fed offset machines. So I want to run a test chart in this machine number 1. I will measure all the parameters. I will explain all those things in my coming slides. I want to give an overview so that you will get an idea. एक बार एक टेस्ट चार्ट को मशीन 1 में प्रिंट करना है, वो टेस्ट चार्ट को निकाल के रखना है। ये टेस्ट चार्ट मशीन 2 में भी प्रिंट करना है, वो भी अलग से रखना है। टेस्ट चार्ट 3 भी प्रिंट करना है, वो भी अलग रखना है। उसका रिजल्ट को एवालुएट करना है। रिजल्ट को मेरा को मशीन 1 का रिजल्ट अलग है, मशीन 2 का रिजल्ट अलग है, मशीन 3 का रिजल्ट अलग है, लेकिन वो रिजल्ट को मैं ISO में कंपेयर करना है। रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3, ये तीनों रिजल्ट को ISO 12647-2 कंपेयर करना है। अगर सोच लीजिए नया मशीन ये नज़दीक है, ISO 12647 का पास नज़दीक है, पुराना मशीन बहुत दूर है, और पुराना मशीन बहुत दूर है, लेकिन इसमें भी मैं नज़दीक लेके आना है। अगर इफ़ आई bring my result almost to this ISO 12647, if my customer is coming with a job, I can print with any machines. Let it be new machine, let it be old machine, let it be 2 years old machine, I can give the same result. How I will do? This is called standardization. You have lot of process for this. Let us see one by one. If you are not doing standardization, your 4 plate will be same. But if you do the standardization, once machine part you have to do some standardization. After doing machine parts also, your result will not match with ISO 647. आप प्री प्रेस में भी थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया तो एक ही जॉब है, इसका प्लेट अलग आएगा, मतलब डॉट का साइज अलग आएगा, इसका डॉट अलग आएगा, पुराना मशीन में अलग आएगा, इधर में अलग आएगा, लेकिन रिजल्ट एक ही आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। ओवरऑल पिक्चर इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स है वो हम अभी देखना चाहते हैं। मैं पहले बोला एक टेस्ट रन को रन करना है मशीन में, वो रिजल्ट को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से। अगर रिजल्ट कितना दूर है, कम है, वो हिसाब से करेक्शन करना है। ये स्टेप 1। अगर टेस्ट रन आप डाल रहा है ना, all of the sudden you cannot put the plate and take the test run. You want to maintain certain parameter in the machine, then putting the test run is advisable. अगर आप रोलर सेटिंग सही नहीं है, आपका पैकिंग वगैरह सही नहीं है, आपका फाउंटेन सॉल्यूशन सही नहीं है, आपका रूम टेम्परेचर सही नहीं है, फिर आप टेस्ट रन डाल रहा है तो
उसमें मतलब ही नहीं है. You want to minimize the variables. There are lot of variables in printing. वो सब वेरिएबल्स को एक ही लिमिट में आना है. अगर सोच लीजिए 3 मशीन, दिस 3 मशीन रूम कंडीशन शुड बी सेम. अगर मशीन 1 को एसी डालता है, मशीन 2 को एसी नहीं डालता है, मशीन 3 को आधा एसी डालता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर इज़ अ सर्टेन स्टैंडर्ड. सारा 3 रूम को भी एक ही रूम कंडीशन होना चाहिए. वाटर का पैरामीटर्स एक ही मेंटेन होना चाहिए. रोलर्स सेटिंग एज पर मैन्युफैक्चरर इट हैज़ टू बी देयर. रोलर्स कंडीशन हैज़ टू बी मेंटेन. सो स्टेप 1, टेस्ट चार्ट प्रिंट करने के पहले फर्स्ट रोलर्स का कंडीशन, रोलर्स का सेटिंग, रोलर्स का डिटेल्स देखना है. स्टेप 2, फाउंटेन सॉल्यूशन. स्टेप 3, फाउंटेन सॉल्यूशन द सेंस आपका डैम्पनिंग यूज कर रहा है ना, वो चेक करना है. स्टेप 3, पैकिंग. स्टेप 4, रूम टेम्परेचर. ये चारों पैरामीटर्स तीनों मशीन को करेक्ट करके उसके बाद टेस्ट रन प्रिंट करना है. अगर रोलर में क्या क्या चेक करना है, रोलर में रोलर का कंडीशन चेक करना है, रोलर का सेटिंग चेक करना है, मतलब इंक रोलर का सेटिंग, डैम्पनिंग रोलर का सेटिंग चेक करना है. ये देख लीजिए, दिस इज रोलर्स, इसका कंडीशन चेक करना है, रोलर का कंडीशन कैसा है वो चेक करना है. और ये रोलर का सेटिंग मतलब एक रोलर दूसरा रोलर में टच होता है. अगर सोच लीजिए इधर टच बराबर नहीं है, फिर इधर इंक देगा लेकिन प्लेट का मशीन इंक नहीं आएगा. फिर आपका ऑपरेटर कीप ऑन इंक्रीजिंग द इंक, लेकिन इधर ही सेटिंग का खराब है, फिर आपका इंक पेपर में नहीं आएगा. देन योर कंसिस्टेंसी विल नॉट बी देयर, quality will be affected. So the basic thing is your rollers, each and every rollers, there should be a setting. This setting is differ from manufacturer to manufacturer. For some manufacturer, this plate setting may be 4 mm. For some manufacturer, plate setting may be 3 mm. कोई भी है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरर का सेटिंग फॉलो करना है. अगर एक बार फॉलो कर दिया तो आप इधर इंक रिलीज कर रहा है ना, सीधा प्लेट को आ जाता है, कलर कंसिस्टेंसी होगा. सो रोलर कंडीशन, रोलर सेटिंग, डैम्पनिंग रोलर सेटिंग, वाटर पैरामीटर, पैकिंग, रूम टेम्परेचर, ये चारों चीज़ पहले हम चेक करना है. उसका बाद टेस्ट रन लेना है, मेजर द रिजल्ट, कंपेयर द रिजल्ट विथ ISO स्टैंडर्ड. इफ नेसेसरी, अगर मशीन में सारा कुछ चेक किया उसके बाद भी आपका डार्ट गेन ज़्यादा आ रहा है, क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसके बाद आप प्री प्रेस में जाना है. पहले somebody asked some questions. So first of all we need to correct all those things in the machine, then we have to go to pre-press. After correcting the test chart, after correction print the test chart and compare the results. ऐसा नहीं है एक बार करेक्शन करने के बाद ऐसा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं है एक बार करेक्शन करने के बाद वापस एक टेस्ट रन लगा दीजिए, प्रिंट करके देख लीजिए रिजल्ट वेदर इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं है, वो भी चेक करना पड़ता है. ये स्टेप, ये पूरा प्रोसेस है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए. अभी रोलर का पूरा डिटेल्स हम भी देखेंगे. फर्स्ट स्टेप, दिस इज द नॉर्मल रोलर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज अ इंक फाउंटेन रोलर्स, इंक टचिंग रोलर्स, यू हैव अ इंक ऑसिलेशन रोलर्स, इंक फॉर्म रोलर्स and dampening rollers. Each and every rollers you have a setting. As per manufacturer you have to keep this setting. Ink rollers, ink form rollers, dampening form rollers, dampening pan rollers, ink ductor rollers, ink transfer rollers and ink oscillation rollers. ये इंक ऑसिलेशन रोलर्स, ये रोलर को ऑसिलेट करता है, इधर उधर इंक को लेके जाता है. ये तो इंक प्लेट फॉर्म रोलर है, प्लेट को इंक देता है. ये डैम्पनिंग फॉर्म रोलर है, प्लेट को पानी देता है. ये डैम्पनिंग पैन रोलर है, पानी लेके दे रहा है. ये इंक फाउंटेन रोलर है, इंक डाल रहा है ना, वो इंक फाउंटेन रोलर है. अब अगर 3 टाइप ऑफ रोलर होता है मशीन में, एक तो कन्वेंशनल रोलर होता है, खाली कन्वेंशनल जॉब छाप सकते हैं. एक तो प्योर यूवी
यूवी रोलर आता है, ईपीडीएम रोलर्स, ओनली यूवी का इंक डाल सकते हैं, कन्वेंशनल इंक डाला है तो रोलर खराब हो जाएगा। दूसरा काम्बी रोलर होता है, काम्बी रोलर इन द सेंस आप यूवी भी यूज़ कर सकते हैं, कन्वेंशनल भी यूज़ कर सकते हैं। ये 3 तरीका रोलर आपका मशीन में आता है। रोलर में रोलर कंडीशन चेक करने के लिए बोला था, कंडीशन में क्या क्या चेक करना है, पहले रोलर का हार्डनेस कितना होना चाहिए वो चेक करना है, फिर रोलर का डायामीटर चेक करना है, फिर रोलर का ग्लेसीनेस चेक करना है। ये रोलर कंडीशन में चेक करना है। उसके बाद रोलर सेटिंग। अभी रोलर हार्डनेस कैसा चेक करेगा? रोलर हार्डनेस चेक करने के लिए एक मीटर होता है, श्योर हार्डनेस मीटर उसका नाम। एक बार वो रोलर में प्रेस करके देख लिया तो उसका वैल्यू बताएगा। ये दिस इज कॉल्ड श्योर हार्डनेस मीटर। रोलर हार्डनेस को ये मीटर से चेक करना पड़ता है। नॉर्मली नया मशीन आ रहा है उसके साथ रोलर आएगा, उस टाइम हार्डनेस बराबर था। प्लेटफॉर्म रोलर का हार्डनेस 28 था, ट्रांसफर रोलर का हार्डनेस 30 था। फिर 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद वो क्या होता है, इंक और वाटर कीप ऑन रनिंग नो, हार्डनेस बढ़ जाता है। हार्डनेस बढ़ने की वजह से वो स्पेसिफिकेशन से बाहर आ जाता है। 6 महीने के बाद इंस्टेड ऑफ 25 हार्डनेस इज गोइंग टू 35। अगर हार्डनेस आपका बढ़ गया तो आपका बराबर इंक वाटर बैलेंस बराबर नहीं होता है। अगर इंक वाटर बैलेंस बराबर नहीं है तो आपका प्रिंटिंग में क्वालिटी अच्छा नहीं आएगा। अगर प्रिंट में क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आपका डॉट गेन बढ़ के दिखेगा, डॉट प्रिंटिंग स्मूथ नहीं आएगा। सो पहले हार्डनेस को मॉनिटर रखना पड़ता है। 3 महीना का एक बार रोलर निकाल के क्लीन करके उसका हार्डनेस कितना है, डायमीटर कितना है वो नोट करके एक चार्ट प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। सो पहले हार्डनेस मेजर करने के लिए हार्डनेस मीटर है, 3 जगह पे मेजर कर लीजिए कितना आ रहा है। 3 महीना का एक बार रिकॉर्ड रख दीजिए। अगर हार्डनेस स्पेसिफिकेशन से 3 पॉइंट और 4 पॉइंट 4 पॉइंट ज़्यादा हो गया तो ज़रूर रीरबरेसिंग करना पड़ता है। फिर रोलर का डायामीटर। अगर रोलर डायामीटर सोच लीजिए मेरा रोलर डायामीटर 75 होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ 75 6 महीने के बाद मेरा रोलर डायामीटर 73 हो गया, क्या होगा, मेरा सेटिंग बराबर नहीं आएगा। मैं प्लेट को ऊपर रोलर लगा के सेटिंग करना पड़ता है। मेरा डायामीटर कम हो गया तो मेरे को सेटिंग ही बराबर नहीं आएगा। अगर सेटिंग बराबर नहीं आया तो मेरे को इंक ट्रांसफ़र बराबर नहीं आएगा। अगर इंक ट्रांसफ़र बराबर नहीं आया तो मेरे को वॉट एवर आई एम एक्सपेक्टिंग टू प्रिंट विद इन शॉर्ट रन आई कैन नॉट गेट, क्वालिटी अफेक्ट होगा। सो डायामीटर भी 3 महीना का एक बार जरूर चेक करना पड़ेगा। इसका वेर्नियर कैलिपर से चेक करना है। अगर डायामीटर 2 पॉइंट प्लस और माइनस हो गया तो रीरबरेसिंग करना पड़ता है। रोलर ग्लेसीनेस। नॉर्मली ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ रोलर, अभी रोलर का माइक्रोस्कोप व्यू है। ये नॉर्मली रोलर सरफेस इट विल लुक लाइक दिस। आपका पीक एंड वैल्यू होगा इसमें। मतलब ये क्यों दिया ना, आपका वाटर और पानी बराबर बैलेंस करके प्रिंटिंग को देने के लिए वो दिया था। लेकिन अभी आप प्रिंटिंग करने के टाइम वो पूरा पेपर इंक वगैरह सब इसमें फिल हो जाएगा। 3-4 महीने के बाद आपका रोलर सरफेस ऐसा हो जाएगा। अगर रोलर सरफेस ऐसा हो गया तो आपका इंक वाटर बैलेंस बराबर नहीं आएगा। आप सोच लीजिए एक जॉब को 1.8 डेंसिटी में प्रिंट करना है, लेकिन वो प्रिंट करने के लिए इंक बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है, 40-50 रोटेशन खोलना पड़ता है, वाटर भी 40-50 रोटेशन रखना पड़ता है। अगर आपका रोलर बराबर है, हार्डनेस ठीक है, ग्लेसीनेस ठीक है, फिर वही डेंसिटी आप 20 पॉइंट में लेके आ सकते हैं। अगर 20 पॉइंट में लेके आए तो आपका क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। इसका चेक करने के लिए यू हैव अ मेथड। सिंपल मेथड, एवरीवन कैन डू द ग्लेसीनेस टेस्ट इन देयर प्रेस रूम। अगर डैम्पनिंग वाटर होता है ना, उसमें एक इंजेक्शन में लेके एक ड्रॉप ऐसा छोड़ दीजिए। अगर ये देख लीजिए इसका डिफरेंस देख लीजिए, इसका डिफरेंस देख लीजिए, ये इमीडिएटली इट विल कम डाउन। मतलब ये पूरा रोलर ग्लेस हो गया। अगर एक बार पानी ऊपर हो गया ना, पूरा तुरंत वो पानी इधर नहीं बैठ रहा है, सीधा उधर आ जाता है। मतलब ये बहुत ग्लेसीनेस है। नॉर्मली रोलर शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी कम ग्रेजुअल। मतलब वो पीक एंड वैल्यू फिल नहीं होता है।
अगर फीकन वैल्यू फिल हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो इट इज़ द इंडिकेशन यू हैव टू change the rollers or you have to deglaze the rollers. There are lot of paste are available in the market. You can remove the roller, you can clean the rollers and you can fix it back. ग्लेसीनेस को अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हार्डनेस बढ़ गया तो वापस रीरब्रेसिंग करना पड़ता है, डायमीटर कम हो गया तो भी वापस रीरब्रेसिंग करना पड़ता है। इन रोलर ये तीनों चीज़ कर हम लोग कर दिया, हार्डनेस, ग्लेसीनेस, डायमीटर, ये तीनों चेक किया। उसके बाद रोलर सेटिंग, मैं पहले बोला था सेटिंग, अभी वो तीनों बराबर है, उसके बाद सेटिंग करना पड़ता है। मतलब ईच एंड एवरी रोलर्स यू हैव ए सेटिंग। ये 3 to 4 mm होना चाहिए प्लेट का ऊपर, ये 4 to 5 mm होना चाहिए। एज पर मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन यू हैव टू डू द सेटिंग। अगर रोलर सेटिंग सही नहीं है तो आपका इंक ट्रांसफर बराबर नहीं होगा। अगर आपका रोलर सेटिंग बराबर है तो आपका 20, एक स्टडी बोल रहा है 27% ऑफ इंक यू कैन सेव। अगर रोलर सेटिंग बराबर है देन यू कैन रन द मशीन एंड अचीव द डेंसिटी विथ मिनिमम इंक ओपनिंग एंड मिनिमम वाटर ओपनिंग। अगर एक जॉब को मैक्सिमम वाटर मैक्सिमम इंक को भी प्रिंट कर सकते, मिनिमम वाटर मिनिमम इंक को भी प्रिंट कर सकते, लेकिन आपका सब स्टैंडर्ड्स बराबर, फिर आप मिनिमम वाटर मिनिमम इंक से प्रिंट कर सकते। अगर ऐसा प्रिंट कर दिया तो अननोइंगली यू आर सेविंग योर इंक कास्ट, योर वाटर कास्ट एंड योर लाइफ ऑफ द प्लेट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। See, normally roller setting strips will be like this. I am telling 4 mm. You want to take a paper, press the paper in the roller strip. You can see the impression like this. See, this is the contact of one roller with another roller. This is been specified by the manufacturer. 3 to 4 mm. We want to measure this. ये 3 to 4 mm है क्या? अगर 3 mm नहीं है, 4 mm नहीं है, उसका सेटिंग होगा, उसका एडजस्ट कर सकते। अगर सोच लीजिए इस तरफ 2 mm है, इस तरफ 4 mm है, फिर इस तरफ आप बैलेंस करना पड़ता है, नहीं तो यू आर गोइंग टू प्रिंट अप कंटिन्यूस सब जॉब्स। इधर ऑल्सो द जॉब इज सेम एंड लेफ्ट साइड ऑल्सो द जॉब इज सेम। इफ योर रोलर सेटिंग इज नॉट गुड you cannot get the even density in the both the side. You want to increase more release in this one side where the roller setting is low. Improper roller setting result in improper transfer of ink, emulsification problem, color consistency problem. अगर emulsification मतलब क्या है, कोई भी इंक है 10 to 20% पानी लेंगे, अगर वो इंक ज़्यादा पानी ले रहा है तो उसका नाम क्या, ओवर एमल्सिफिकेशन। अगर इंक पानी नहीं लेता है तो उसका नाम अंडर एमल्सिफिकेशन। अगर ओवर एमल्सिफिकेशन हो गया तो भी आपका प्रिंटिंग बराबर नहीं आएगा, स्मूथनेस नहीं आएगा, शार्पनेस नहीं आएगा। और अंडर एमल्सिफिकेशन होगा तो भी कम आएगा, रोलर मार्क आएगा। सो एमल्सिफिकेशन रेट हैज़ टू बी मेंटेन एज पर स्टैंडर्ड। टू मेंटेन द एमल्सिफिकेशन रेट रोलर्स बराबर कंडीशन में होना चाहिए, रोलर सेटिंग बराबर होना चाहिए, रोलर्स हार्डनेस सब कुछ मेंटेन होना चाहिए। अगर आपका रोलर सेटिंग बराबर है तो कलर कंसिस्टेंसी, सोच लीजिए आप 50,000 शीट्स यू आर प्रिंटिंग, फ्रॉम शीट 1 to 50,000 शीट्स योर कलर विल बी सेम। इफ योर रोलर सेटिंग इज नॉट गुड, आफ्टर 10,000 योर कलर विल बी डिफरेंट, आफ्टर 20,000 योर कलर विल बी डिफरेंट। सो द रोलर्स इज द बेसिक पार्ट। ये इम्प्रॉपर रोलर सेटिंग है। अभी रोलर सेटिंग आपका सही नहीं है तो कैसा मालूम पड़ेगा? अब एक बार रोलर को वॉशिंग कर लो, उसमें 20 रोलर होगा, वो रोलर को चेक कर लो। ये देख लीजिए इधर पूरा इंक, पुराना इंक पकड़ा हुआ, मतलब इसके सेटिंग नहीं है, इसका वजह से ये रोलर वॉशिंग नहीं हुआ। इधर भी रोलर वॉशिंग नहीं हुआ। अगर रोलर वॉशिंग नहीं हुआ तो हम कितना भी इंक ऊपर से खोलेगा नीचे नहीं आएगा, आपका कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा। ये देख लीजिए, ये एक तरफ सेटिंग है, दूसरा तरफ सेटिंग नहीं है। फिर इधर से हम इंक डालता है, ये रोलर इधर से इंक लेता है, इधर लेगा इधर नहीं लेगा। दोनों तरफ आपका सेम ही इमेज है, लेकिन आप इंक तो सेम ही खोला हुआ, लेकिन ये सेटिंग का वजह से इधर आपका बराबर प्रिंटिंग आ जाएगा, इधर नहीं आएगा। फिर वापस पानी खोलो, इंक खोलो,
वो सब खेल शुरू हो जाएगा, क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगा। सेटिंग शुड बी लाइक दिस, फ्रॉम 4 mm इक्वली फ्रॉम बोथ द साइड। अगर ऐसा हो गया तो आपका क्वालिटी 100% ज़रूर होगा। नॉर्मली you want to measure the ink water balance in a quantitative method, you can measure the 80% patch in your print। अगर 80% पैच 92 to 94% वैल्यू दिखता है तो आपका इंक वाटर बैलेंस बराबर। अगर ये वैल्यू कम ज़्यादा दिखता है मतलब आपका इंक वाटर बैलेंस बराबर नहीं है। इंक पानी ज़्यादा देता है, नहीं तो पानी कम देता है, वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रिंटर्स क्या कर सकते हैं, मशीन में अगर वो ग्रिपर में ये 3 लाइन फॉर्म होगा, ऐसा ये 3 लाइन मोटा भी नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर मोटा हो गया तो पानी कम चलता है प्लेट में, पतला होगा तो पानी ज़्यादा चलता है। ये नॉर्मली ऑपरेटर कैन सी दिस, ये देख के बराबर मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये मेंटेन कर दिया तो आपका इंक वाटर बैलेंस बराबर हो जाएगा। रोलर मेंटेनेंस, रोलर कैसा मेंटेन कर सकते? पैन रोलर को मतलब दिस इज योर पैन रोलर। ये पानी देता है, ये पानी लेके प्लेट को देता है। अगर ये पैन रोलर ऐसा क्लीन होना चाहिए, एक दिन शिफ्ट खत्म होने के बाद आईपीएल लेके पूरा क्लीन करके जाना है। You can see this type of picture also. All these pictures is taken from some of the press, many presses in India. This is well maintained picture, well maintained press, and this is poorly maintained press. अगर ऐसा वाला पूरा इंक जमा हुआ फिर क्या होता है, पानी प्लेट का अंदर नहीं जाता है, आपका क्वालिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। Use IPA to clean the dampening roller regularly. At the weak end वो दोनों का रोलर को बीच में सेटिंग होता है, उसका लूज करके जाना है। नहीं तो क्या होता है, दिस इज मेटल एंड दिस इज रबर, ये एक प्रेस हो जाता है, प्रेस हो जाकर तो रोलर डैमेज होने के लिए चांसेस बहुत है। अगर 2 दिन छुट्टी हो रहा है, 3 दिन छुट्टी हो रहा है तो वो नाब को रिलीज करके जाना पड़ता है। सम ऑफ द डिफेक्टिव रोलर्स, ये वेल मेंटेन रोलर्स है, अगर डैमेज एज है मतलब अब बराबर वॉशिंग नहीं हुआ, वो क्या हो गया, रोलर में वॉश है, वो वॉश पूरा रोलर का रबर में ऊपर बैठ जाएगा। 2 दिन 3 दिन के बाद वो रबर को खींच जाएगा। ये देख लीजिए पूरा वॉश रोलर का बीच में है, इसका वजह से वो रबर बाहर आ जाता है। नॉर्मली इन प्रेस यू हैव अ वॉशिंग ब्लेड, वो वॉशिंग ब्लेड को यू कैन सी दिस टाइप ऑफ पिक्चर इन योर प्रेस। ऐसा इधर उधर डाल देगा वो तो गलत है, ऐसा डाल के रखना पड़ता है, स्टैंड बना के वो वॉशिंग ब्लेड को डाल के रखना पड़ता है। अगर वॉशिंग ब्लेड बराबर होगा तो वॉशिंग भी बराबर है, नहीं तो वॉशिंग आपका बराबर नहीं होगा। रोलर स्टोरेज मेथड, ये तो रोलर स्टोरेज का मेथड है। हियर यू कैन सी द रबर roller is they are keeping directly on the wood. What happened, the rubber keep on pressing the wood, the rubber diameter will change. So this is the correct method to store the roller. ये रोलर मेंटेनेंस के लिए एक चार्ट बना दीजिए, एक हफ्ता का एक बार रोलर वॉश करना है, 1 महीना का एक बार रोलर रिमूव करके क्लीन करना है, 3 महीने का एक बार सेटिंग करना है करके एक चार्ट बना के वो मेंटेन कर दिया तो आपका पूरा पिक्चर आ जाता है आपका रोलर का कंडीशन कैसा है करके। हाँ कौन सा, ये हाँ ये वर्टिकल नहीं है एक्चुअली, पिक्चर क्या ऐसा डाला है, हाँ ऐसा डाला है, दोनों बैरिंग का साइड में लकड़ी रखा हुआ, हाँ बैरिंग डैमेज हो जाएगा सीधा, लेकिन पिक्चर ऐसा दिखता है आपको, साइड में रखना है। लेकिन वो रबर है ना, वो रबर फ्री होना चाहिए, नॉर्मली शाफ्ट में बैठना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप we are seen about roller hardness, glaziness, diameter and roller maintenance. Before printing the test chart, this roller part we have to take care, so we have been take care by this. So first point is over. So now second point, fountain solution. एक सवाल पूछ रहा था, फाउंटेन सॉल्यूशन मतलब अभी आप खाली पानी से प्रिंट कर सकते हैं,
क्या होगा प्रिंट कर दिया तो? पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा एक तो। हाँ एक तो सही है, सही बात है। अगर पानी में हम क्या क्या मिक्स करता है? फाउंट मिक्स करता है, आईपीए मिक्स करता है। वो किसके लिए मिक्स करता है? अभी आप सही बोला था। अगर आईपीए और फाउंट मिक्स नहीं किया तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, मशीन को स्पीड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया क्या होगा? इंक भी ज़्यादा खोलना पड़ता है, बराबर बैलेंस नहीं होगा। इसका वजह से अभी हमारा मशीन सारा पूरा स्पीड में चलता है, 16,000 इंप्रेशन पर आवर, 15,000 इंप्रेशन पर आवर। पहले ओल्डन डेज में 2,000 इंप्रेशन पर आवर, 3,000 इंप्रेशन पर आवर तब मशीन चलाया। उस टाइम ये फाउंट और आईपीए का ज़रूरत नहीं है, बहुत स्लो चलाया था। लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो गया, 16,000 इंप्रेशन पर आवर। वो बैलेंस करने के लिए हमारा पानी को ट्यून करना है। मतलब 16,000 में आपको मशीन चल रहा है, उसका टाइम भी आपका कम नहीं आना चाहिए, क्वालिटी बराबर आना चाहिए। सो यू हैव टू डू सम मॉडिफिकेशन इन वाटर। क्या मॉडिफिकेशन करना है? अगर आप फाउंट को डाला है तो वो पीएच वैल्यू एकदम कम हो जाता है। नॉर्मली पानी 7 में होगा पीएच, वो फाउंट डाला है तो पीएच 7 से 4 आ जाएगा। अगर फाउंट पीएच को 4.5 to 7 लेके आने के लिए मैं फाउंट डाल देता हूँ। अगर pH 4.5 to 7 डाल आ गया तो मेरा कंडक्टिविटी भी 800 to 1000 माइक्रो सीमेंस आ जाएगा, 1200। ये क्यों मैं 4.5 to 5.5 लेके आ रहा है? अगर मेरा पानी खाली पानी से प्रिंट कर रहा है, नो फाउंट नो आईपीए, मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम आएगा? फ्री रोलिंग का प्लेट नहीं है, बराबर प्लेट को वाइप नहीं करेगा, इंक ड्राई नहीं होगा और इंक वाटर बैलेंस बराबर नहीं होगा। इसका वजह से मैं कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, वही मैं फाउंटेन सॉल्यूशन ऐड कर रहा हूँ। अगर फाउंटेन सॉल्यूशन ऐड कर दिया तो मेरा पानी का वैल्यू 4.5 to 5.5 pH आ जाता है। अगर 4.5 to 5.5 pH आ गया तो मेरा प्लेट बराबर वेट करता है, इंक वाटर बैलेंस बराबर होगा, ड्राइंग बराबर होगा, प्लेट को डैमेज नहीं करता है, पेपर को डैमेज नहीं करता है, और वी कैन रन द मशीन विद हाई स्पीड, क्वालिटी भी अचीव कर सकते हैं। इसका वजह से आप पानी में फाउंट डालता है, और ये आज पानी में फाउंट डालता है 4.5 to 5.5 मेंटेन हो रहा है। 4 दिन के बाद 5.5 से 6.5 हो गया, वही जब चाप रहा है 4 दिन के बाद, आपका क्वालिटी बराबर नहीं आएगा। इसका वजह से पानी कभी भी सुबह, आज सुबह, कल सुबह, परसों सुबह मेशर करके वो pH 4.5 to 5.5 ज़रूर मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो आपका क्वालिटी नहीं आएगा। नॉर्मली ये फाउंट में क्या क्या है? यू हैव एसिड, गम, करोशन इनहिबिटर, वेटिंग एजेंट, फंगिसाइड, एंटी फोमिंग एजेंट। ये एक रोल करता है। गम आपका नॉन इमेज एरिया में बराबर बाइट के स्कम को अवॉइड करता है। एसिड गम को फ्री रेडिकल कन्वर्ट करके यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। केमिकल करोशन इनहिबिटर, मतलब आप पानी यूज़ कर रहा है, आपका मशीन पूरा मेटल है, प्लेट मेटल है, वो करोशन नहीं होना चाहिए। अगर करोशन हो गया तो फिर मशीन का लाइफ कम हो जाएगा। वो करोशन इनहिबिटर सब इसका अंदर डाला हुआ, इसका वजह से वो करोशन नहीं आएगा आपका। फंगिसाइड, फंगस शुड नॉट बी डेवलप इन द वाटर। सो ये फाउंटेन सॉल्यूशन का अंदर इतना चीज़ है, एक कंट्रोल करता है। फंक्शन ऑफ फाउंटेन सॉल्यूशन, फाउंटेन सॉल्यूशन प्लेट को पूरा वाइप करता है, आपका स्कम नहीं आने के लिए चांसेस ही नहीं देता है। वही वो अभी फाउंट ज़्यादा डाल दिया तो भी, फाउंट पानी ज़्यादा डाल दिया तो भी आपका इंक एमल्सिफिकेशन प्रॉब्लम आएगा। पुअर इंक नहीं पकड़ेगा, कोटिंग एरिया में इंक नहीं पकड़ेगा, आपका कलर पूरा डल हो जाता है। अगर फाउंट कम चलाया तो भी स्कम प्रॉब्लम आ जाता है, प्लेट वीक हो जाता है। पीएच 4. मैं बोला पीएच 4.5 to 5.5 मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं किया, पीएच 5.5 का ऊपर गया तो ये पानी हो जाएगा। स्कम आने के लिए चांसेस, बहुत पानी खोलना पड़ता है। और पीएच बहुत लो हो गया तो भी एसिडिक हो गया तो प्लेट को ब्लाइंड करता है, प्लेट जल्दी वीक हो जाता है।
कंडक्टिविटी मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ फाउंटेन सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आज पानी डालता है, 1 कप तक चल रहा है, दो कप तक चल रहा है, 3 कप तक चल रहा है, अब पीएच को मेंटेन करके रखता है। लेकिन कंडक्टिविटी किसका मेजर कर रहा है? सोच लीजिए, अगर कंडक्टिविटी 1200 का ऊपर गया, उसमें ज़्यादा कचरा हो गया, पानी को चेंज करना पड़ता है। सोच लीजिए कंडक्टिविटी 2000 हो गया 1 हफ्ता के बाद, 2 हफ्ते के बाद, इट इज़ अ इंडिकेशन यू हैव टू चेंज द वाटर इमीडिएटली, अदरवाइज यू विल हैव अ improper ink water balance in printing। pH तो प्रिंटिंग को पैरामीटर देखता है, कंडक्टिविटी तो वाटर का कंडीशन कैसा है हमको इंडिकेशन देता है। अगर कंडक्टिविटी 2000 का ऊपर गया, सीधा पानी को चेंज कर लो। कंडक्टिविटी फ्लक्चुएट एटलीस्ट 200, वाटर प्यूरिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, बट मतलब वाटर प्यूरिफिकेशन इज नेसेसरी। 200 का ऊपर कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गया, मतलब 1200 से ज़्यादा हो गया, कंडक्टिविटी ज़्यादा हो गया तो पानी चेंज करना पड़ता है। pH नीड टू बी चेक पीरियडिकली, बिकॉज pH आपका पेपर यूज़ कर रहा है, इंक यूज़ कर रहा है, वो सारा pH का वैल्यू को कम ज़्यादा करता है, इसके लिए वो ज़रूर चेक करना पड़ता है। अभी फाउंट क्यों ऐड कर दिया इसको बता दिया। अभी IPA क्यों ऐड कर रहा है हम? एनी आंसर? और ज़्यादा प्लेट को वाइप करता है, सही बात है। अगर पानी का सरफेस टेंशन IPA डाल दिया तो कम हो जाता है। अगर सरफेस टेंशन कम हो गया तो कम पानी प्लेट का पूरा वाइप करता है। अगर IPA नहीं डाला है तो आपका प्रिंटिंग करने के लिए 50 पॉइंट खोलना पड़ता है। अगर IPA डाला है तो आप प्रिंटिंग करने के लिए 20-25 पॉइंट्स खोल दिया तो भी आपका प्रिंटिंग बराबर आ जाएगा। लॉजिक इज लो वाटर लो इंक क्वालिटी इज सही। वो लो वाटर भेजने के लिए ये IPA हम ऐड कर रहा है। अगर IPA ऐड कर दिया तो पानी का सरफेस टेंशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये इतना बड़ा पानी इतना जगह प्लेट को वेट करता है, इसमें IPA नहीं है। अगर IPA डाला है तो सेम प्लेस ये एकदम छोटा सा पानी वेट करता है। हमको ये सिस्टम चाहिए सो दैट बराबर इंक वाटर बैलेंस हो जाएगा। IPA मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मैं पहले बोला, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, प्लेट को जल्दी वाइप करता है। अगर IPA लेस हो गया तो ज़्यादा पानी खोलना पड़ता है, कम आ जाएगा। अगर IPA ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इंक का अंदर पिगमेंट होता है, उसमें मिक्स करके कलर को डल करता है, आपका पूरा डल करता है, क्वालिटी नहीं आएगा। सो ऑलवेज मेंटेन IPA बिटवीन 8 to 10%। ये फाइनल है आपका। pH 4.5 to 5.5 होना चाहिए, कंडक्टिविटी 800 to 1200 होना चाहिए, एंड IPA 8 to 10% होना चाहिए। इसमें वेरी सिंपल है, आप प्लेन पानी ले लो, 6.5 to 7.5 का pH का पानी ले लो, उसमें तो 2.5% फाउंट ऐड कर लो, 8% IPA ऐड कर लो, 80% रिजल्ट विल कम इन दिस। until otherwise your water is not good, your result may not come, but 2.5 and 8% IPA ऐड कर लो, ये रिजल्ट आपका आ जाता है। नॉर्मली चिल्लर होता है, चिल्लर में क्यों टेम्परेचर है? कोई बोल सकते हैं? नहीं, इंट्रैक्शन होना चाहिए, मैं भी बोल दूंगा। टेम्परेचर किसके लिए मेंटेन कर रहा हूं हम? और दूसरा चीज क्या है, ये IPA है ना, ये पेट्रोल का तरीका है, ये एवापरेट हो जाता है। अगर आप चिलनेस नहीं है, पानी 25 डिग्री 30 डिग्री होगा तो आप डालेगा तुरंत ये एवापरेट हो जाएगा, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसका वजह से एक डैम्पनिंग चिल्लर को कंप्रेसर लगा के चिल्लिंग सिस्टम लगा देता है। मतलब टेम्परेचर इज ऑलवेज मेंटेन बिटवीन 8 to 10 डिग्री। अगर 8 to 10 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, फिर आपका IPA एवापरेट होगा, वो एवापरेशन रेट बहुत कम होगा। सोच लीजिए, मेरा को बहुत सारा कंप्लेंट आएगा, सर सुबह मेरा को प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, फिर चलते 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 शाम को प्रॉब्लम हो जाता है करके।
उधर देख लिया तो वो चिल्लर बंद हो जाएगा, मतलब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, इसका वजह से आईपीए पूरा एवापरेट हो जाएगा। अब इधर पानी ज़्यादा देना पड़ता है, नहीं तो कम आएगा, इसका वजह से टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अभी टेस्ट रन प्रिंट करने के पहले रोलर पैरामीटर्स मशीन में चेक किया, फाउंटेन सॉल्यूशन आईपीए चेक किया, ये 2 चीज़ हो गया। अभी तीसरा पैकिंग, मशीन में प्लेट और ब्लैंकेट दोनों का पैकिंग रखना पड़ता है। इट विल डिफर विथ वन मैन्युफैक्चरर टू अनदर मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर एक वैल्यू बोलेगा, दूसरा मैन्युफैक्चरर दूसरा वैल्यू बोलेगा, एज पर दर सिलेंडर डायग्राम। वो पैकिंग बराबर मेंटेन करना पड़ता है। अगर पैकिंग बराबर नहीं है फिर आपका प्रिंटिंग बराबर नहीं आएगा, डॉट गेन आएगा, डॉट लॉस आएगा, ये सारा प्रॉब्लम आपका आ जाएगा। अगर प्लेट पैकिंग का में 0.1 रखना है, 0.1 का पहले 0.2 रख दिया, क्या होता है, मेरा कोई इमेज छोटा हो जाता है, बाकी कलर इमेज बराबर हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलेगा। अगर पैकिंग कम हो गया, मेरा को प्रेशर, प्लेट और ब्लैंकेट का प्रेशर कम हो जाता है, प्लेट से ब्लैंकेट का डॉट ट्रांसफ़र होता है ना, वो बराबर नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये प्लेट सिलेंडर है, ये ब्लैंकेट सिलेंडर है, ये इंप्रेशन सिलेंडर है। ये प्लेट सिलेंडर के लिए एक पैकिंग रखना पड़ता है, ब्लैंकेट सिलेंडर के लिए एक पैकिंग रखना पड़ता है। अगर सोच लीजिए ब्लैंकेट सिलेंडर के लिए 0.55 पैकिंग रख दिया, 0.55 पैकिंग रख दिया तो इधर से बराबर डॉट इधर आएगा ब्लैंकेट का, इधर से बराबर डॉट पेपर को आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ 0.55 मैं 0.75 रख दिया, क्या होता है, इधर मेरे को एक्सेस प्रेशर हो जाता है। अगर इधर एक्सेस प्रेशर हो गया तो मेरा डॉट साइज इधर ही बढ़ेगा, उसके बाद इधर भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ 7.5 मैं 3.5 लगा दिया, इधर डॉट बराबर ट्रांसफ़र नहीं होगा, इधर भी बराबर ट्रांसफ़र नहीं होगा। वेरी सिंपल लॉजिक, डॉट लॉस होगा, नहीं तो डॉट गेन होगा। अगर आप चेक कर रहा है ना डॉट गेन पैरामीटर्स, अगर डॉट गेन बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो गया तो प्री प्रेस में आप कितना भी करेक्ट कर लो, ये सारा चीज़ सही नहीं है तो पूरा वेस्ट है। अगर आपका मशीन सही है उसका बाद भी आपका डॉट गेन आ रहा है, डॉट लेस आ रहा है, फिर प्री प्रेस में चला जाइए। अगर इधर गलत है फिर प्री प्रेस में बार बार बुला के सेटिंग चेंज कर लो, वेस्ट है वो। प्लेट पैकिंग, अगर प्लेट पैकिंग बराबर नहीं है तो रजिस्ट्रेशन बराबर नहीं बैठेगा, डॉट प्लेट वीक हो जाएगा, डॉट रिप्रोडक्शन बराबर नहीं आएगा। एक्सेस पैकिंग डॉट गेन, लो पैकिंग डॉट लॉस, और इंक का ट्रैपिंग भी बराबर नहीं आएगा। पैकिंग भी हो गया। अभी मशीन में तीसरा चीज चेक किया था, टेस्ट रन चार्ट प्रिंट करने के पहले। अभी फोर्थ रूम टेम्परेचर में मैं पहले बोला तीनों रूम के लिए एक ही टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। अगर ये एक ज़्यादा टेम्परेचर है, ये एक कम टेम्परेचर है, इसमें टेम्परेचर नहीं है तो क्या होगा, अब पानी मेंटेन कर रहा है, पैकिंग मेंटेन कर रहा है, रोलर सेटिंग मेंटेन कर रहा है, लेकिन रूम एसी नहीं है। एक रूम एसी है, दूसरा प्रेस रूम एसी नहीं है। इसमें 20 में आपका प्रिंटिंग ले सकते हैं, पानी का रोटेशन, इसमें 40 रखो, उस टाइम प्रिंटिंग आ जाएगा आपका। फिर क्या होता है, इसका मैक्सिमम डिफरेंस है, इसमें कम पानी कम इंक प्रिंटिंग आ जाता है, इसमें मैक्सिमम पानी मैक्सिमम इंक प्रिंटिंग आ जाता है। सो रूम टेम्परेचर हैज़ टू बी मेंटेन। अगर रूम टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो इंक का पैरामीटर्स भी मेंटेन हो जाता है, पेपर एक्सपेंशन कंप्रेशन कम हो जाता है, रजिस्ट्रेशन बराबर मिलेगा। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 to 60 होना चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया तो पेपर का एक्सपेंशन बहुत हो जाता है, कम हो गया तो पेपर का कंप्रेस हो जाएगा, प्रिंटिंग करने के टाइम आपका रेडी नहीं मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। इसका वजह से रूम टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, ये प्रॉब्लम सब अवॉइड करने के लिए। अभी ये चारों चीज़ चेक करने के बाद आप टेस्ट रन ले रहा है, टेस्ट रन बोल रहा है, सुबह से टेस्ट रन निकालना है, टेस्ट रन निकालना है। टेस्ट रन मतलब क्या है, ये टेस्ट रन है, ये टेस्ट चार्ट है, इसमें क्या क्या चेक कर सकते हैं आप। हाँ, टेस्ट रन एक ही, दूसरा क्यों नहीं? कौन सा? टेस्ट रन में हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मैं वही आ रहा हूँ, क्या क्या चेक कर सकते हैं। ये फोटो कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो होना चाहिए।
हम भी खुद बना सकते हैं। ये देख लीजिए, आप टेस्टर में अभी इंटरेक्टिव हो जाएंगे। टेस्टर में क्या क्या चेक करेंगे वो बता दीजिए। ठीक है, एक मिनट। डार्ट गेन, ग्रे बैलेंस, ट्रैपिंग और लाइन थिकनेस, घोस्टिंग। ठीक है, अभी थोड़ा इंटरेक्शन होना तो। ट्रैपिंग बराबर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है फिर? टेस्टेड में ये सारा चेक कर सकते हैं, लेकिन बराबर आ गया तो ठीक है। ट्रैपिंग बराबर नहीं है। और नॉर्मली मैं आपको एक इंक सप्लायर है, दूसरा इंक सप्लायर भी आ रहा है, सर मेरा इंक अच्छा है करके आपको दे रहा है। फिर दूसरा इंक सप्लायर आ रहा है, सर मेरा इंक बहुत अच्छा है ले लो। तीसरा इंक सप्लायर भी आ रहा है, सर मेरा इंक, ये दोनों इंक वेस्ट है सर, ये इंक ले लो सर, अच्छा होगा। लेकिन आप कन्फ्यूजन हो जाता है। वो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए सीधा वो पैरामीटर्स पूरा मेंटेन करके एक टेस्टर निकालो, ट्रैपिंग का वैल्यू मेजर कर लो। रेड, ग्रीन, ब्लू, इसका ट्रैपिंग का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है ISO 12647 का हिसाब से 80 का ऊपर होना चाहिए। कौन सा इंक 80 का ऊपर आ रहा है देख लीजिए, हाथ बंद करके वो इंक ले लीजिए। ये ट्रैपिंग चेक करके इंक सेलेक्ट करने के लिए मेथड 1। उसके बाद माइलेज वो अलग चीज़ है, आप लॉन्ग रन में भी चेक कर सकते हैं, शॉर्ट रन में भी चेक कर सकते हैं, ड्राइंग अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपका ट्रैपिंग बराबर नहीं है तो आप प्रिंटिंग कर रहा है, स्किन टोन कर रहा है, नहीं तो सॉलिड कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है, आपका एक इंक का ऊपर एक बराबर बैठना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं बैठा तो आपका प्रिंटिंग में क्वालिटी नहीं आएगा। सो ये टेस्ट रन में मैं अभी बता देता हूँ। एक टेस्ट रन निकाल के ऐसा देख के चेक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन बराबर और नहीं। रजिस्ट्रेशन आप रूम टेम्परेचर सारा सेट किया, फिर पेपर का एक्सपेंशन कम हो जाएगा, वो डाउट नहीं है। फिर मशीन में क्या प्रॉब्लम है वो चेक करना पड़ता है। दूसरा, आई ग्लास देख के डबलिंग आ रहा है क्या? डबलिंग मतलब क्या है? डॉट साइज बढ़ जाता है, डबलिंग आ रहा है क्या वो चेक करना पड़ता है। अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है? मशीन ग्रिपर का वजह से आ रहा है, पैकिंग का वजह से आ रहा है, पेपर का वजह से आ रहा है, वो सारा करेक्ट करना पड़ता है। ये तो विजुअल मेथड है। फिर डेंसिटोमीटर यूज़ करके और सब मेथड चेक कर सकते, वो क्या क्या है। अभी टेस्ट एंड प्रिंट करके विजुअल भी चेक कर सकते, मेजरमेंट भी कर सकते। विजुअल में क्या क्या है? रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते, डबलिंग चेक कर सकते। अभी टेस्ट रन में ये चेक कर सकते हैं आप, डॉट गेन, डॉट लॉस, स्टैंडर्ड इंक डेंसिटी मतलब LAB वैल्यू, प्रिंट कॉन्ट्रास्ट 75% डॉट कैसा आ रहा है, प्रिंट कॉन्ट्रास्ट मतलब हाईलाइट और शैडो के बीच में कैसा आपका प्रिंटिंग आ रहा है, शार्पनेस कैसा आ रहा है, वो सारा ये डिसाइड करता है। ट्रैपिंग, इंक एक का ऊपर इंक कैसा बैठ रहा है। स्लर मतलब आपका पैकिंग का वजह से कुछ का प्रॉब्लम नहीं है, वो लेटरल पैकिंग। अगर पैकिंग सोच लीजिए कैलिब्रेटेड शीट यूज़ करना है, आप कैलिब्रेटेड यूज़ करने के पहले मैप लिथो पेपर यूज़ कर रहा है ब्लैंकेट का अंदर, थोड़ा टाइम के बाद वो एक्सपेंशन हो जाता है। अगर सर्कमफ्रेंशियली एक्सपेंशन हो गया तो सर्कमफ्रेंशियल स्लर हो जाता है, लेटरली एक्सपेंशन हो गया तो लेटरल स्लर हो जाता है। इसका वजह से भी डॉट गेन बढ़ जाएगा। अगर आप बैकिंग बराबर नहीं है, डॉट गेन बढ़ गया, प्री प्रेस में जाके करेक्शन कर दिया तो भी सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम। ये सब रेडी करने के बाद आप प्री प्रेस जाना है, करेक्शन करना है। रजिस्ट्रेशन सही नहीं है तो ऐसा दिखेगा पिक्चर, ये देख लो, ये करेक्ट डॉट साइज है ये पिक्चर का। अगर डॉट साइज, डॉट गेन ज़्यादा हो गया, ये पिक्चर देख लीजिए, सेम पिक्चर है, इधर डॉट साइज करेक्ट है, मतलब कितना डॉट गेन होना चाहिए उतना है। इंस्टेड ऑफ डॉट गेन 20 इट वाज 30, वो पिक्चर ऐसा दिखेगा। डॉट लॉस हो गया तो भी ऐसा दिखेगा। ये देख लो, ये नॉर्मल डॉट है, ये डॉट गेन है, ये डॉट लॉस है।
ये डबलिंग, नॉर्मली ऐसा डॉट ऐसा हो गया स्लर, मतलब सर्कमफ्रेंशियल स्लर हो गया, ऐसा ऊपर गया पैकिंग का वजह से। नॉर्मली ऐसा डॉट होना चाहिए, ऐसा हो गया तो भी आपका डॉट गेन वैल्यू ज़्यादा दिखेगा। प्री प्रेस में कितना भी करेक्ट कर लो ठीक नहीं होगा। ये तो डबलिंग किसका वजह से आ रहा है वो सब। एक बार ये चारा मेंटेन किया, टेस्ट एंड प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वैल्यू मेजर कर रहा है, वैल्यू मेजर करके ISO 12647 में कंपेयर कर रहा है, इसका वैल्यू ये सब करने के बाद भी मेरा डॉट गेन ज़्यादा आ रहा है। इंस्टेड ऑफ 50% आई नीड 18 to 20% डॉट गेन, बट माई डॉट गेन इज 25 इन मिशन 1, माई डॉट गेन इज 18 इन मिशन 2। सी ये नया मिशन है, माई डॉट गेन ऑफ ब्लैक इज 18%, माई डॉट गेन ऑफ ब्लैक इन 10-year-old मिशन 28%। अभी मैं वापस आ गया वो पूरा करेक्ट करने के बाद, मैं डॉट गेन ऑफ 5-years-old मिशन 25%। अभी मैं प्रिंट सेम प्लेट से प्रिंट कर दिया तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। मेरा स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मेरा रिजल्ट इधर 80 into 22 डॉट गेन आना चाहिए, इसका वजह से इतना काम कर रहा है। अभी ये आने के लिए क्या करना है, अभी मेरे को रिजल्ट मालूम पड़ गया, इसमें 28 आ रहा है 50% में, इसमें 50% में 18 आ रहा है, इसमें 50% में 25 आ रहा है। सो फॉर दिस प्लेट आई डोंट वांट टू डू एनी करेक्शन इन प्री प्रेस, 18 to 22 आ रहा है, लेकिन इसमें मेरा को 6% डॉट गेन ज़्यादा आ रहा है। ऑल आर लीनियर प्लेट्स, here 6% डॉट गेन ज़्यादा आ रहा है। एज मिस्टर Pandalaselvam told, you directly go to pre-press because everything is maintained here, you directly go to pre-press in 50% dot gain, just reduce 1 to 1.5 dot percentage, 50% dot should be 48.5 और 49। अगर 1% उधर माइनस कर दिया तो इधर 4% कम हो जाएगा। सोच लीजिए, इधर 50% डॉट प्लेट में 50% है, इधर 50% डॉट प्लेट में 48.5%, इधर 50% डॉट 49.5%। अभी CTP से एक ही जॉब है, 3 अलग अलग डॉट का प्लेट है, वो प्रिंट करता है, रिजल्ट एक ही है। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। And you add one more point here. You are saying that 50% is 28 in the machine 1. करेक्ट। All 4 units will not be 28. हाँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ब्लैक ओनली टू अंडरस्टैंड। It will have 4 settings. 4 सेटिंग्स। एक्चुअली वो आपको समझने के लिए मैं खाली एक ही कलर बोल दिया था, ब्लैक। अगर सायन होगा तो भी सायन को भी ऐसा सेटिंग होता है, वो अलग डार्क गेन होता है, मेजेंटा येलो। सो 4 प्लेट आ रहा है ना, 4 प्लेट का कर्व अलग है फॉर मिशन 1, कर्व अलग फॉर मिशन 2, कर्व अलग फॉर मिशन 3। माई अल्टीमेट एम इज वेन एवर माई कस्टमर इज कमिंग, वेदर द मिशन 1 is running, mission 2 is running, mission 3 is running, my result will be same. This is called standardization. Okay. 2 का ले सकते हैं इंडिविजुअल, हाँ 2 का डॉट गेन हो रहा है सपोज, हाँ, तो 2 का आपने कब सेटिंग किया, 2 मतलब कोई भी 2 यूनिट का, हाँ ठीक है, चारों में से। हाँ तो 2 का चुना रहेगा, हाँ। और 2 अपन नया कब सेटिंग करके लेंगे तो मैच होएगा। नहीं समझा आपका नहीं, 2 यूनिट में ना 4 यूनिट है, ब्लैक साइन मजेंटा येलो, Yes. ब्लैक साइन बराबर आ रहा है, एक्शन बराबर आ रहा है, मैजेंटा येलो बराबर नहीं। कब सेटिंग किया, हाँ येलो और मैजेंटा को मैंने कब सेटिंग कर हाँ, कर सकती करके इधर लेके आया था, हाँ। फिर डाल दीजिए, हाँ। बराबर आ जाएगा पक्का, नहीं आता है, बराबर आएगा। फिर चारों प्लेट डालना पड़ता उसमें डार्क कम कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना फिर आपका। है, चारों को स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ रहा है। नहीं उधर चेंज कर दिया तो स्टैंडर्ड और टारगेट में ना, हाँ। टारगेट तो ही रहता है, करंट स्टैंडर्ड को जाके अपन चारों का वैल्यू चेंज किया और 2 का प्लेट निकालेंगे। वो आप चारों का एक ही कर्व में चेंज कर रहा है क्या आप? हाँ, मैं बोल रहा हूँ अलग अलग कर्व में करना पड़ता है, ब्लैक का अलग, साइन का अलग, मजेंटा अलग, येलो का अलग, अलग अलग कर्व में करना पड़ता है। एक ही कर्व में कर दिया तो इधर भी चेंज हो जाएगा आपका, कौन सा अच्छा यूनिट है वो भी चेंज हो जाएगा।
I think he will explain you for much detail. क्या समझ दो यूनिट में प्रॉब्लम है, फिर दो यूनिट में डॉट गेन है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, दो यूनिट का कॉप सेट करके लेना है, तो बाद में अपना यूनिट है ना, वो अपना आज ही रखा, तो उसका मैच नहीं। एक्चुअली एसिडिस नहीं कर सकता है, उसका भी आप कर्व वैल्यू बनाओगे लेकिन प्लेट का डॉट उतना ही आएगा। कुछ रिप्स में ऐसे ऑप्शंस रहता है, कुछ रिप्स में चारों यूनिट का कर्व बनाना पड़ता है, कुछ रिप में सिर्फ जिस यूनिट में चाहिए वही यूनिट में कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या ना, कोई मशीन में कोई जॉब में सिर्फ एक प्लेट लगाएंगे ना तो रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आता है उनको, कभी वो लोग 4 प्लेट निकालता है। So it is also depending on your rep, but basically when you create a curve you have to create for all 4 units, but you can create for 2 units, but it is recommended to create curve for all 4. लेकिन जो तो यूनिट बराबर था ना उसका प्लेट 50-50 आएगा, या प्लस माइनस 1-2% का फर्क रहेगा, बट उसका वैल्यू विद इन स्टैंडर्ड ही रहेगा, बट कर्व चारों को ही बनाएंगे हम। बट इफ यू वांट यू कैन क्रिएट कर्व ओनली फॉर दैट यूनिट ऑल्सो। अब आप लोग वही भी किया, सिर्फ ब्लैक के लिए बनाया, प्लेट निकाला बराबर आया ना फिर। एनी क्वेश्चंस? अभी ये समझ गया क्या स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है करके? हाँ डॉट जो गेन होता है या लॉस होता है, हाँ। तो कोई स्पेसिफिकेशन है कि कौन सा मशीन में इतना गेन होना चाहिए? हाँ ज़रूर होता है। नॉर्मली मैन्युफैक्चरर अलग अलग वो टेस्टिंग करके दे देंगे। नॉर्मली मित्सुबिशी में 18% डॉट गेन होगा, हाइडेलबर्ग में 20% डॉट गेन होगा, रायोबी में 17% डॉट गेन होगा, वो दे देंगे। लेकिन मैनुअल में आप पूछे तो सर्विस इंजीनियर दे देंगे आपको, नॉर्मल ऑपरेशन मैनुअल में नहीं होगा। लेकिन आप सर्विस इंजीनियर को पूछा तो ज़रूर दे देंगे। वो कोई भी है वो स्टैंडर्ड में सेट होगा। अगर स्टैंडर्ड ISO स्टैंडर्ड ले लीजिए तो 50% ऑफ ब्लैक फॉर कोटेड पेपर, 18 to 20% फॉर मैप लिथो पेपर। स्पेशल रहेगा ना कि कितना गेन रहेगा तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ है? नहीं वो ISO सपोज 50 का मैंने स्क्रीन लिया, हाँ। 50 के सामने जो डिजायर रिजल्ट कितना होना चाहिए, कितना का गेन होएगा तो डिजायर रिजल्ट मिलेगा? 50 के सामने इफ इट इज़ फॉर नहीं, इफ इट इज़ an art पेपर, मैं पहले वो पिक्चर्स भी दिखाया था मैंने, 50% इफ इट इज़ an art पेपर और मैट पेपर 50% डॉट है। व्हेन इट कम्स टू द पेपर इट शुड बी 64.5 आइडियल, प्लस माइनस 4%, बिकॉज एग्जैक्टली 64.5 में आप प्रिंट नहीं कर सकते हो, वो ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन 64% ऊपर नीचे चलेगा। तो 64.5 4 कम करोगे तो 60 हो जाएगा, मैक्सिमम 68.5। दिस इज द आइडियल रेंज ऑफ ISO। यस, मशीन टू मशीन वेरी होता है। वो क्या हो जाएगा, वो इधर इट विल बी मोर देन 68 बराबर, और इट विल बी लेस देन 60। इफ इट इज मोर देन 68 you have to go to the CTP and bring it to that range. If it is less than 60 you have to go to the RIP and bring it to that range. Mission 1, Mission 2, Mission 3, Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4। अब जैसे उन्होंने बताया 4 यूनिट will not give the same dot gain। फॉर एग्जाम्पल चारों का लीनियर, चारों का प्लेट में 50% है, लीनियर प्लेट दे दिया, सो ऑल 4 यूनिट प्लेट हैज़ 50% स्क्रीन। व्हेन प्रिंट करेंगे सायन में यू हैव द डॉट, आपको 65 चाहिए, समझ लेंगे, वी नीड 65। Cyan is printing 70, magenta is printing 60, yellow is printing 75. So every unit is giving a different dot gain. किसी में dot loss है, किसी में dot gain है. But this is abnormal case, क्योंकि if there is a dot gain, it should be dot gain. If there is a dot loss, it should be dot loss. एक में बहुत dot loss है, एक में बहुत dot gain है, then you have to see the machine. Assuming your press conditions are okay, एक में minimum point में एक maximum point है, then this has to be compensated by the CTP only. कोई भी मशीन है, it has to come to the same level, but in ISO there is also one more provision। बस मेरा इतना strictly print नहीं करना चाहता हूँ, I don't want to waste lot of paper and time on the, just adding some point, lot of time on this, though ISO is giving you 3 choice, curve 1, curve 2, curve 3. It means curve 1 means 50% should come 64.5 plus or minus 4, curve 2 is 50% should come 67.5 plus or minus 4, curve 3 is 50 should come as 70 plus or minus 4। अगर आपको बहुत पुराना मशीन है, आपको लगता है कि मैं 20% डॉट गेन से मेंटेन करना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम मेंटेनेंस दैट परसेंट। इफ यू गो फॉर न्यूज प्रिंट एंड इज 26%, इस साइड में 30% का भी है। सो डिपेंडिंग ऑन द पेपर यू कैन इवन हैव द चॉइस ऑफ कर्व। ऐसे नहीं कि मेरे को 64 ही मेंटेन करना है, बट देयर इज अ चॉइस। 2% डॉट गेन का अलग है, 64, 67, 69, ऐसे 3 चॉइसेस आपका।
So you can choose anything. But in case customer is specifying you, I want itna hi chahiye, a range mein chahiye, then your only choice is to reproduce that. You have to machine 1, machine 2, machine 3, unit 1, unit 2, unit 3, 6 unit hai, 8 unit hai, jitna bhi machine hai, if customer is demanding that dot gain, you have to calibrate all your machine to bring that to standard. Actually मेरे एक सवाल था, this is not in India, abroad में, the machine का plate का requirement size था 0.15, पैकिंग plate का thickness. प्लेट थिकनेस ठीक है वो 0.15 I think SM 1.15 SM 52 है क्या? 52 में 0.15 का plate is a recommended one. ओके But in that country, 0.15 plate is not available. ओके Only 0.30 is available. 0.30 Is is available and वो लोग super कर लिया कि ये plate मिलेगा नहीं है. It is not possible for us to buy. ओके ओके So do you think is it recommended और क्या करना पड़ेगा वहाँ पे? अगर 0.15 मैन्युफैक्चरर सजेस्ट कर रहा है लेकिन वो तो रेयर केस है. एक मिनट, वो कंट्री में पूरा SM 52 मशीन्स में पूरा 0.3 चला रहा है. सी ऐसा केस आ गया तो ईयर आपका 0.15 का प्लेट रखना पड़ता है. लेकिन अगर 0.15 का आपका फैक्ट्री में पूरा सेटिंग किया हुआ, 0.15 का बैरर प्रेशर सेट किया हुआ, इधर पूरा सेटिंग किया हुआ, अगर 0.15 में नहीं है लेकिन आपको मशीन तो चलना चाहिए, 0.3 का प्लेट लगा दिया, अगर इधर 0.3 का प्लेट लगा दिया तो ज़रूर इधर बैरर प्रेशर ज़्यादा होगा. वो सर्विस इंजीनियर को बुला के वो बैरर प्रेशर को 0.3 को जीरो करना पड़ता है. मतलब 0.3 प्लेट लगा के वो बैरर प्रेशर को रेडी करना पड़ता है. मतलब आप 0.3 प्लेट लगा दिया तो इधर सेटिंग को कम करना पड़ता है. माई अल्टीमेट एम इज माई सेटिंग शुड बी 3 mm फॉर दिस रोलर्स एंड हियर द बैरर प्रेशर should be something maybe 0.15 or 0.10. It should be come for this 0.3 plate also. We have to do correction here in this barrel pressure, then only the dot reproduction from year to year will be correct. It can be done. It can be done. Then as it is, this is the same case. Here all are same. You are telling this instead of 1.5 you are putting 0.3. If as it is you put 0.3, definitely the pressure will be more as per practice standard. You have to reduce this pressure as per this 0.3. Changing the bearer pressure is recommended. Very very rare cases because you are going out of specification. If customer is willing, this is my machine, I can take any risk, then that is okay. But as a service engineer or as a company, they won't recommend to change the barrel pressure. If customer is willing, yes, this is my machine, I can take any risk to give the savings, then they can do. Everything is possible up to certain limit. Anything else? Thank you.